Hello students, today we will study class 9 English, second chapter of the book Moments, that is the adventures of Toto. Keeping pets is a very popular hobby. However, when one has a baby monkey as one's pet, the experiences are bound to be very different. We all know that many of us, of course, has pets like dogs, cats in our home, and it's a very popular hobby of keeping animals as pets. But what will happen if one has a mischievous baby monkey in their homes as their pet? Of course, the experiences are very different, very different from that of having a pet dog or a pet cat. So, The Adventure of Toto, which is written by Ruskin Bond, describes humorous episodes related to a mischievous pet monkey and the failed efforts made by its owners to give it a comfortable home. So, in the starting of the story, we are told कि कैसे टोटो को पेट बनता है वो टोटो. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. अब इस स्टोरी में जो नरेटर है वो ग्रैंडफादर का एक रिलेटिव है. ओके, तो वो अपनी स्टोरी सुना रहा है. तो वो कहता है कि ग्रैंडफादर टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद के लाए थे. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू था. तो उस मंकी को देखकर उस टोंगा ड्राइवर के पास ग्रैंडफादर को लगा कि ये मंकी तो बड़ा अच्छा सा है, क्यों ना मैं इसको अपने प्राइवेट जू में डाल दूँ, क्यों ना मैं इसको अपने प्राइवेट जू में ले आऊँ. तो उन्होंने वो मंकी खरीद लिया 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से. सो टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. ओके, बहुत खूबसूरत सा मंकी था वो. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीव बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. तो टोटो की जो आइज़ थी वो बहुत ब्राइट थी और उसकी आँखों में ही इतना मिस्चीवियसनेस था, मतलब बहुत शैतान सा था वो. एंड हिज टीथ वर अ पर्ली वाइट. ओके, बहुत पर्ली वाइट कलर के उसके टीथ थे. were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और वो अपनी टीथ से ऐसे स्माइल करता था कि लोग डर जाते थे. But his hands looked dried up, as they had been pickled in the sun for many years. और उसके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई थे, इतने ड्राई थे कि ऐसा लग रहा था कि उसको हाथ को ना बहुत सालों तक धूप में सुखाया गया. He had dry hands. Yet his fingers were quick. पर उसकी फिंगर्स बहुत क्विक थी और बड़ी विकेट फिंगर्स थी. And his tail, while adding to his good looks, also served as a third hand. और उसकी टेल को वो अपना थर्ड हैंड की तरह यूज़ करता था. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड add to anyone's good looks. और ग्रैंडफादर को लगता था कि अगर किसी एनिमल के पास टेल है अच्छी सी, तो उससे उस एनिमल के गुड लुक्स और बढ़ जाते हैं. he could he could use it to hang from a branch. और वो अपनी टेल से ब्रांच से लटकता था. And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. तो कोई भी चीज़ जो वो हाथों से नहीं उठा सकता था वो अपनी टेल से उसको ग्रैब कर लेता था. So grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. जब भी ग्रैंडफादर अपने प्राइवेट जू के लिए कोई भी नया एनिमल लेके आते थे तो ग्रैंड मदर को बड़ी दिक्कत हो जाती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. जब भी वो एनिमल लेके आते थे तो वो गुस्सा करती थी, इसलिए जब टोटो को लाया तो ये डिसाइड किया कि टोटो को उनसे छुपा के रखेंगे और तब बताएंगे जब उनका मूड अच्छा होगा.
ऐसा नहीं कि उनके बैड मूड में बता दें और फिर वो हमें डांटे. So, grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तो टोटो को नरेटर के बेडरूम में जो क्लोजेट था उसकी वॉल में जो है टाई कर दिया. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. थोड़ी देर बाद जब नरेटर और उसके ग्रैंडफादर टोटो को रिलीज़ करने आते हैं, उसको अनफास्टन करने आते हैं, तब वो देखते हैं कि जो वॉल्स पे वॉल पेपर लगा हुआ था जो कि ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था, वो सारा दीवार से उतरा हुआ है. एंड द वॉल इज़ नाउ नेकेड with brick and plaster visible. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. तो टोटो ने क्या किया था कि उसने वॉलपेपर को उतार दिया था और अपना जहाँ पे बेल्ट से उसको वहाँ पे बांधा गया था उस बेल्ट को भी उसके सॉकेट से तोड़ दिया था. एंड ही ऑल्सो tore the school blazer of the narrator into shreds, which was hanging there. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब नरेटर यही सोच रहा था कि अगर ग्रैंड मदर को टोटो की ये सारी परफॉर्मेंस पता चलेगी तो वो कितना गुस्सा करेंगी. पर ग्रैंडफादर को कोई चिंता ही नहीं थी इस बात की. एक्चुअली में ग्रैंडफादर को टोटो की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही थी. ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस. He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर ने कहा कि काफ़ी क्लेवर है टोटो. अगर उसको थोड़ा और टाइम मिलता तुम्हारे ब्लेज़र के टोन पीसेस को एक साथ बांध कर रोप बनाकर वो विंडो से बाहर निकल जाता. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब टोटो को घर से निकाल कर ग्रैंडफादर के सर्वेंट्स क्वार्टर में रख दिया था जहाँ पे ग्रैंडफादर के बाकी सारे पेट्स भी रहते थे. अभी तक ग्रैंड मदर को पता नहीं चला था कि टोटो कोई है, यानी कि टोटो घर में है. तो टोटो को एक बड़े से केज में सर्वेंट्स क्वार्टर में रख दिया था जहाँ पे ग्रैंडफादर के बहुत सारे और भी पेट्स रहा करते थे. कौन से? अ टोटॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. जब उसको वहाँ पे रखा गया तो मंकी किसी को सोने ही नहीं देता था रात में. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब वो मंकी क्योंकि बहुत शैतान था, किसी को सोने नहीं देता था, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि क्यों ना वो उसको अपने साथ ले जाएं. कहाँ? ग्रैंडफादर को नेक्स्ट डे देहरादून जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने. तो उन्होंने सोचा कि वो टोटो को भी साथ ले जाएंगे. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. इधर I कौन है? I is the narrator who is narrating the story. The relative of grandfather. वो कहता है कि मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया. A big black canvas kit bag was provided for Toto. तो टोटो के लिए एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस किट बैग अरेंज किया गया था. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. उस बैग के बॉटम में बहुत सारी स्ट्रॉज बिछा दिए गए थे. बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, यानी कि उस बैग में अब टोटो बैठ के जाएगा. When the bag was closed, there was no escape.
जब बैग को बंद कर देते थे तो टोटो बाहर नहीं निकल पा रहा था. टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब वो बैग काफ़ी अच्छा था टोटो के लिए because he could not escape from that place. ना बाइट करके ना जिप खोल के he wasn't able to escape. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers at the Dehradun railway platform. तो जब वो लोग देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे आए तब टोटो बाहर निकलने की कोशिश में बैग के साथ हवा में उड़ने लगता. ही उससे स्टार्ट जंपिंग इनसाइड द बैग जिससे कि बैग भी जंप करने लगता था. और सारे लोग उनको देहरादून रेलवे स्टेशन पे देख रहे थे. So, Toto remained in the bag as far as Saharanpur. Saharanpur तक Toto bag में ही रहा. But while grandfather was producing his tickets at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर तक टोटो बैग में ही था, पर जब रेलवे स्टेशन पे ग्रैंडफादर टिकट्स ले रहे थे तभी टोटो ने अपना सर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक ग्रिन दिया. ग्रिन इज अ मिस्चीवियस स्माइल. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. अब ये देखकर जो टिकट कलेक्टर था ही टुक अबैक. But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." अब टिकट कलेक्टर को लगा कि ये तो डॉग है, बैग में तो डॉग है, you will have to pay for it accordingly. तो उन्होंने बोला कि सर आपके बैग में एक डॉग है, आपको डॉग की भी टिकट खरीदनी पड़ेगी. In vain did grandfather take out Toto out of the bag. He tried to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was some handed over as a fare. तो टिकट कलेक्टर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि टोटो इज़ नॉट अ डॉग, टोटो इज़ अ मंकी. तो उसने ग्रैंडफादर से टोटो के ट्रैवल के लिए 3 rupees लिए. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this since you are charged for all animals?" So grandfather was really annoyed from the ticket collector because even though Toto was monkey, he charged him thinking that he is a dog. तो इसी अनोयंस में ग्रैंडफादर ने अपने पॉकेट में से टोटोज निकाला और पूछा कि इसके कितने पैसे दूँ मैं तुम्हें बिकॉज यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स. So the ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." तो टिकट कलेक्टर इतना फुलिश था कि उसने टोटोस को भी बड़े ध्यान से देखा, पहले उसको ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद कहा कि ये डॉग नहीं है तो हम इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ग्रैंडमदर ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तब टोटो को एक कंफर्टेबल स्पेस में घर में ही एक स्टेबल में रखा गया था. Where he had for a companion the family donkey नाना. वहाँ पे टोटो का कंपेनियन था फैमिली का डंकी जिसका नाम था नाना. On Toto's first night, the grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जब टोटो पहली रात उस टेबल में रहा था तब ग्रैंडफादर ने वहाँ पे गए ताकि ही गेट्स अश्योर्ड कि टोटो इज़ कम्फर्टेबल ओवर देयर. वहाँ जाके उन्होंने ये देखा कि नाना बहुत ही अनकम्फर्टेबली बिहेव कर रहा है. तब उन्हें ये पता चला कि टोटो ने नाना के कान को बाइट कर लिया था with a sharp little teeth. So Toto and Nana never became friends. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब जब ठंड होती थी तब सर्दियों में की शाम में टोटो के लिए सबसे बेस्ट ट्रीट हुआ करती थी गर्म पानी का बोल जो कि ग्रैंड मदर उसको देती थी ताकि वो नहा ले.
He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. जब उसको गर्म पानी का बोल दिया जाता था नहाने के लिए, तब वो पहले अपने एक हाथ से पानी को छूकर पानी का टेम्परेचर चेक करता था, फिर आराम से धीरे धीरे करके एक पैर रख के फिर दूसरा पैर रख के अंदर जाता था पानी के, और अपने नेक तक पानी तक बैठ जाता था। और ऐसा उसने नरेटर को करते हुए देखा था, इसलिए वो नरेटर को कॉपी करता था ऐसा करते हुए। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. तो जब टोटो पॉट में आराम से बैठ जाता था, तब वो अपने हाथ में सोप लेता था और अच्छे से अपनी बॉडी को सोप से रब करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब नहाने का पानी उसका ठंडा हो जाता था, तब वो उस पॉट से बाहर निकल के जितनी तेज़ वो भाग सकता था उतनी तेज़ भागकर वो किचन फायर प्लेस की पास चला जाता था, ताकि वो अपने आप को ड्राई और वार्म कर सके। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अब उसके नहाने और नहा के बाहर निकल के भागने तक के प्रोसीजर पे अगर कोई हंस देता था, तब टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी एंड देन ही वुड रिफ्यूज़ टू टेक अ बाथ। So, one day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. अब एक दिन ऐसा हुआ कि टोटो ने अपने आप को ऑलमोस्ट बॉयल कर लिया था। कैसे? A large kitchen kettle was being left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब एक दिन किचन में स्टोव पर पानी बॉयल हो रहा था केटल में, टू मेक टी, चाय बनाने के लिए पानी बॉयल हो रहा था इन अ केटल। तो टोटो को जो सही लगा उसने वो किया और उसने उस केटल की लिड हटा दी। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. अब उसने देखा कि पानी तो बहुत वार्म है, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पे बाथ ही ले लूँ, तो वो उस केटल के अंदर बैठ गया जाकर। This was just fine for a while until the water began to boil. अब जब तक water boil नहीं हो रहा था तब तक तो ठीक था, but when the water started boiling, Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. अब वो जब नीचे बैठ रहा था तब उसको गर्म लग रहा था, जब वो थोड़ा खड़ा हो रहा था केटल से थोड़ा बाहर निकल रहा था तो वो कोल्ड वेदर था, उसको ठंड लग रही थी। So he continued hopping up and down for some time. तो वो कुछ देर तक ऊपर नीचे हॉप होता रहा, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और वो ऐसा हॉपिंग केटल के बाहर और अंदर तब तक करता रहा जब तक ग्रैंड मदर आई और उन्होंने टोटो को उस बॉइलिंग केटल से बाहर निकाल लिया। हॉल्ड हिम का मतलब होता है बाहर निकाल लिया। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अब नरेटर ने एक ऐसी आयरॉनिक लाइन बोली है कि अगर हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता जो मिस्चीव के लिए डेवलप हुआ होता, तो टोटो के पास उस मिस्चीवियस ब्रेन पार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होता। दैट मीन्स टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस। He was always tearing things to pieces. वो हमेशा किसी भी चीज़ को छोटे टुकड़ों में फाड़ देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अब जब भी नरेटर की कोई भी आंट टोटो के पास जाती थी तो टोटो हमेशा उनकी ड्रेस को पकड़कर उसमें एक होल कर देता था। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब एक बार लंच का टाइम था तो डाइनिंग टेबल पे एक बड़ी सी डिश में पुलाव पड़ा हुआ था बहुत सारा। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. अब जब लोग बाकी सारे घर के लोग डाइनिंग रूम में एंटर करे तो उन्होंने देखा कि टोटो वो पुलाव खा रहा है। दैट मीन्स ही इज स्टफिंग हिमसेल्फ विद दैट पुलाव। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। अब ग्रैंड मदर उसे देखकर स्क्रीम करी तो टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी।
One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. अब नरेटर की एक आंट टोटो की तरफ गई तो टोटो ने उनके मुंह पर पानी का ग्लास मार दिया. When grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जब ग्रैंडमदर टोटो के पास गई तब टोटो प्लेट उठाकर विंडो से बाहर चला गया. We found him in the branches of a jackfruit tree, a dish still in his arms. अब वो विंडो से बाहर निकलकर एक जैक फ्रूट यानी कि कटहल के पेड़ पर जाके बैठ गया. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स और उसके हाथ में अभी भी प्लेट थी. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. अब वो पूरा दोपहर वहीं जैक फ्रूट के ट्री पर बैठा रहा एंड ही वाज सो डिटरमाइंड टू फिनिश दोज राइस कि वो एक एक दाना फिनिश कर रहा था. So, and then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब grandmother को चिढ़ाने के लिए क्योंकि वो उसके पास आई थी and she screamed at him, तो उसने डिश को ट्री से नीचे फेंक दिया और जब वो गिरी तो वो खुश हो गया. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers. So, grandfather found a Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अब of course ही बात है कि Toto was a very mischievous pet who was causing a lot of loss to the grandfather and his family. तो वो एक ऐसा पेट नहीं था जिसको घर पे रखा जाए, स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉट दैट वेल टू डू पीपल एंड दे कुड नॉट अफोर्ड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्योंकि वो डिशेस तोड़ रहा था. ही वॉज टियरिंग ऑल द क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉल पेपर्स. तो टोटो को ग्रैंडफादर ने जाकर उसी टोंगा ड्राइवर को 3 रुपीज़ में बेच दिया. Now let's look at the theme and the message of the story. The theme says that the story is based on the experiences of people who keep animals as pets. इस स्टोरी का थीम ये चीज़ पर है कि जो लोग पेट्स रखते हैं अपने घर में उनके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं. व्हाट डू दे एक्सपीरियंस. द थीम दस डील्स विद द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, कि जब ह्यूमंस इंटरेक्ट विद एनिमल्स तब क्या आउटकम्स आते हैं, तब क्या रिजल्ट्स होते हैं. इट शोज़ दैट नॉट ऑल एनिमल्स कैन अडेप्ट देमसेल्व्स टू द ह्यूमन वे ऑफ लाइफ. कि सारे एनिमल्स जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स, टोटो जैसे वाइल्ड एनिमल्स, मिस्चीवियस एनिमल्स, वो ह्यूमन वे ऑफ लाइफ यानी कि हमारे जैसे डिसिप्लिन डोसाइल लाइफ में वो नहीं अडाप्ट कर सकते. मिस्चीवियस एनिमल्स लाइक टोटो या फिर वाइल्ड एनिमल्स लाइक टोटो आर इन अ हैबिट ऑफ टियरिंग, स्क्रैचिंग everything they see around us, right? But humans live in a very docile manner. Humans always take care of their belongings, but wild animals do not care for anything. So keeping them as pets can definitely result in a lot of losses. It requires a great deal of patience and skill to train animals to acquire non-destructive behavior. अब ऐसा नहीं है कि the animal is wild तो हम उसको एक डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड और नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में अडैप्ट नहीं करवा सकते. बट करवा तो सकते हैं, बट द ट्रेनिंग ऑफ दैट एनिमल टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्किल्स ताकि हम उस एनिमल को एक नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दे सकें. Now the message. The writer intends to convey the message that baby animals look cute and we are tempted to keep them as pets. तो पहला मैसेज ये है कि जो बेबी एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स क्यूट लगते हैं हमें, एंड वी आर टेम्प्टेड टू कीप देम एज पेट्स. However, we should not get carried away by their prettiness because each animal has its own characteristics. हमें सिर्फ उनकी प्रिटीनेस, क्यूटनेस को देखकर ही कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए. We should also keep in mind that they have their own characteristics. They have their own natural behavior.
Some animals like monkeys are very mischievous. They can cause a lot of damage if one is not careful with them. अब इस स्टोरी में जैसे कि मंकी का जिक्र हुआ है, तो पोएट ये कहते हैं कि मंकी जैसे एनिमल्स आर वेरी मिस्चीवियस, एंड अगर उनकी प्रॉपर केयर ना हो या फिर उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान ना रखा जाए, उनकी हर एक एक्टिविटी का ध्यान ना रखा जाए, तो दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. So, one should not keep animals as pets unless one has adequate information and skill to train and handle them. तो ह्यूमंस को ऐसे पेट्स रखने ही नहीं चाहिए जिनके बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो. However, animals thrive better in their natural habitat. अब वाइल्ड एनिमल्स जो है वो अपनी वाइल्ड हैबिटेट में ही अच्छे से रह पाएंगे, एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक cats and dogs don't cause much problem because they are home animals or they are pets. So mischievous animals or wild animals should be let to live in their own and natural habitat. So that brings us to the end of this video and end of this chapter 2. I hope you all understood this chapter very well. If you have any queries or questions to ask, you can ask them in the comment box below. Do like, share and subscribe.